Good morning students. Today we are starting next topic that is related to energy. Before that, let me introduce the basic concept of power. We have studied this concept. Power is defined as time rate at which work is done. This can be written as dW upon dt, that means rate of doing work. And if work done is written as F dot ds. So this power can also be expressed in another form. What is this form? F dot ds divided by dt. This is F dot v. That means power can also be taken as dot product of force and velocity. This is a new point which you are introducing here. And before it, rate of doing work, that power is given, that has been studied by you earlier. So what is the SI unit of power? SI unit of power is watt, symbolically represented by capital W. So if you have to define SI unit of power, power is said to be 1 watt if it can do 1 joule of work per second. That means when it can do 1 joule of work in 1 second. So then only power is said to be 1 watt. And the bigger unit of power is 1 kilowatt, that is 10 raised to the power 3 watt. So this was just the introductory concept, although you are familiar with this concept of power. Now we are taking the concept of energy. What is energy? Yes, you can easily tell me this answer, that energy of a body is the ability of a body to do work. That means ability to do work. Now, if we take the energy, then it can be taken, that is mechanical energy is taken as in two forms, that is kinetic energy and potential energy. Today we will discuss this kinetic energy, and on its basis we will also study work energy theorem. First of all, what is the concept of kinetic energy? देखिए कैसे आपको पता चलता है कि हम kinetic energy की बात करते हैं. एक कार मूव कर रही है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर करके वो आगे जा रही है. कभी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कभी 60 है, कभी ब्रेक्स लगते हैं 20 किलोमीटर पर आवर है. इसका मतलब कार जब अपनी पोजीशन चेंज करती है और वो मोशन में आ जाती है, तब उसके अंदर एक एनर्जी होती है उसके मोशन की वजह से, जो कि है काइनेटिक एनर्जी. व्हेन द विंड इज ब्लोइंग, सो इन दैट विंड आल्सो देयर इज मोशन. So it means this kinetic energy of a body is the energy possessed by a body by virtue of motion or due to motion of the body. So there can be many examples. You can take another examples. A bullet fired from a gun. When there is a gun and a bullet is fired from it, so it is gaining velocity. So ये velocity gain करती है, तो इसके अंदर क्या हो गई? Kinetic energy हो गई. अब हम यहाँ पर कहें कि मान लो एक ये वुडन ब्लॉक है और इसमें मुझे एक नेल अंदर ड्राइव करनी है विद द हेल्प ऑफ हैमर. सो नेल इज ड्राइवन इनटू विद दिस वुडन ब्लॉक ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर. हैमर इसको हिट करेगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हैमर की वजह से ये नेल कहाँ जाएगा? ये मोशन में आएगा एंड इट विल गो इनसाइड द वुडन ब्लॉक. So there can be many examples to understand where the body can be in motion. So that may possess kinetic energy. अब हम इसका expression discuss करते हैं. What is the expression for it? We will discuss here two methods. एक method तो आप अपने 9th class में करते आए हैं, एक दूसरा method भी हम यहाँ discuss करेंगे. मान लो हम ये कहते हैं कि कोई body है जो कि point A पर है और इसका mass m है. अब इसको हम B पॉइंट पर लेके जाते हैं आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस S, एंड बॉडी हैज स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट. अब बॉडी को अगर यहाँ मूव करना है तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. और फोर्स लगाने की वजह से व्हेन द फोर्स इज F इज द अप्लाइड फोर्स, तो इट विल प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इन द बॉडी. सो नाउ here we have to get work done in moving a body from A to B. अब work done के लिए हमें क्या चाहिए? Force, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट तो हमें एज गिवन है, तो उस
फोर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम कहते हैं, हम लगाते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2s। हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इनिशियल स्पीड तो 0 पता ही है, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और फाइनल स्पीड कितनी लेगी v। तो यहाँ से v स्क्वायर हो गया 2a और डिस्टेंस कवर्ड s है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना हो गया v स्क्वायर बाय 2s। तो फोर्स कितना हो जाएगा m इंटू a। तो मास एक्सीलरेशन हो गया v स्क्वायर बाय 2s। अब वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस s, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, mv स्क्वायर बाय 2s इंटू s। तो क्या हो गया mv स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। यही एक्सप्रेशन आप जूनियर क्लासेस में भी करते आए हैं। नाउ वी विल टेक इट्स alternate method. Let's see how. As we have taken that F is the force applied. See, this is an alternative method. This is, you can choose any method. This is the method which is based on the concept of class 11 content. अब हम कहते हैं अगर जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगता है, मान लो ds होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर ये फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट करता है तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा F डॉट ds। फोर्स जहां लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी वहीं होगा, तो एंगल इनके बीच में कितना हो गया 0। तो ये हो गया F इंटू ds। अब क्या होगा, बेसिकली व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। हम कहते हैं फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ड्यू टू फोर्स एक्सीलरेशन विल ऑल्सो बी डेवलप्ड। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एक्सीलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन को हमने स्टडी किया था बेसिक डेफिनेशन में, dv अपॉन dt, वही वैल्यू यूज की है। अब इस वैल्यू को जब हम यूज कर रहे हैं, तो अब हम ये वैल्यू ऊपर यूज कीजिए वर्क डन में, तो आएगा m dv अपॉन dt इंटू ds। अब नेक्स्ट स्टेप में ds अपॉन dt को कंबाइन कर दीजिए, ds अपॉन dt, ds हो गया चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है ना। तो क्या मैं इसको लिख दूं mv dv, लिख सकते हो, क्योंकि ds अपॉन dt को हम v लिख सकते हैं। तो स्मॉल वर्क डन इस फॉर्म में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ, क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रही है। तो टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग स्मॉल वर्क डन विद इन द लिमिट्स 0 to v। 0 इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है और आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, उस टाइम उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी v है। तो ये लिमिट्स किसकी पुट की है, वेलोसिटी की पुट की है। अब देखिए यहाँ पर मास कांस्टेंट है, हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन v के विद रिस्पेक्ट में है, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाय 2। अब इस पे आप लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या होगा m बाय 2 v स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या आ गया mv स्क्वायर बाय 2। सी एग्जाम्पल में इस रिजल्ट में आपका वही कॉन्सेप्ट आया है, वही रिजल्ट आया है जो आपने पहले सिंपल मेथड से किया था। तो ये कोई कंपलसरी मेथड नहीं है, आपको अगर सही लगता है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। बुक्स में ज्यादातर ये वाला मेथड दिया होता है, लेकिन आप दूसरे वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर स्पेसिफाई कर दिया हो कि यूज कैलकुलस मेथड, देन क्योंकि कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, तब आपको ये यूज करना है। अगर कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन मेथड मेंशन करेंगे तभी आपको ये मेथड करना है, नहीं तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया हाफ mv स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एक रिलेशन, किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमारी, मान लो मैं इसको E से इंडिकेट कर दूँ, तो हमने भी एक्सप्रेशन निकाला है हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम क्या होता है m इंटू। अब दोनों में रिलेशन निकालना है,
तो यहाँ मैं इसमें एक चेंज करूँ कि इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई कर दूँ और m से ही डिवाइड कर दूँ तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि सेम फैक्टर है, तो m/n1। अब m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर। तो एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं p स्क्वायर इज 2me और मोमेंटम हो गया √2me। तो बेटा ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली हम इसे यूज करते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों रिलेशन के बेसिस पर हम एक ग्राफिकल पॉइंट स्टडी करते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को मास के साथ प्लॉट करते हैं एज E इक्वल टू p स्क्वेयर बाय 2m, तो ग्राफ क्या शेप होगा, दिस वन, और मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। मास को वेरी करेंगे, यानी अलग अलग बॉडीज के लिए करेंगे। या फिर अगर हम ग्राफ ले मोमेंटम और मास का, मोमेंटम क्या है m/v, राइट। तो उसके करस्पॉन्डिंगली अब अगर हम मोमेंटम को वेरी करते हैं और मोमेंटम स्क्वायर होता है 2me, ये तीनों रिलेशंस आपस में रिलेटेड है। तो अगर हम इसको वेरी करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ आएगा तो बेसिकली इट विल बी लाइक दिस, p इज √2me। तो यानी ये जो एनर्जी आएगी ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और एक तीसरा ग्राफ, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, तो ग्राफ कुछ ये शेप लेगा, कीपिंग द मास कांस्टेंट। मास, किसी बॉडी का मास हमने कांस्टेंट रखा लेकिन उसका मोमेंटम चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है। तो स्पीड चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी किस प्रोपोर्शन में चेंज होती है, अगर आप अलग अलग वैल्यूज लेके चलें और प्लॉट करना चाहें तो इस फॉर्म में ग्राफ आएगा। ये तीनों ही ग्राफ को आप टैली करना चाहें तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज, मासेस की अलग अलग वैल्यूज लेके करिए। यहाँ पर मास सेम लेके मोमेंटम यानी स्पीड को आप अलग अलग करिए, तब ग्राफ प्लॉट कीजिए। और इन्हीं रिलेशंस के ऊपर ये जो हमारे रिलेशंस हैं, इन रिलेशन के बेसिस पर आप चेक कीजिए, ग्राफ विल बी लाइक दिस। नाउ आफ्टर दिस लेट वी डू 1-2 numericals which will give the relation between kinetic energy and momentum. So first statement which I am taking, if kinetic energy is increased by 300%, by what percentage linear momentum of the body will increase? भाई काइनेटिक एनर्जी आपकी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की इंक्रीज हो रही है 300% में, तो लीनियर मोमेंटम में क्या चेंज होगा? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन नजर आता है। इसमें आपको पहले तो स्टेटमेंट पे वर्क करो, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज होने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मान लो हम ये लें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, E। तो काइनेटिक एनर्जी अगर E है और ये किससे रिलेटेड है, मोमेंटम, क्योंकि हमें यहाँ पर मोमेंटम का इंक्रीज बताना है तो हमें वो रिलेशन पता होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ से P कितना होगा, √2m। अब हम कहते हैं कि जो एनर्जी है वो कितनी हो गई है, 300% इंक्रीज हो गई, यानी E में 300% का इंक्रीज ऐड हुआ। ये पॉइंट समझना है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब E तो है, E में 300% ऑफ E ऐड हो जाएगा। तो अगर हम इसे करें 300% कैसे लेंगे, 300/100 into E, so it will be 4E. So final kinetic energy is 4E. अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2me अंडर द रूट। अब E डैश को हम 4E पुट करें, 2m4E। तो अगर मैं इसको इनिशियल मोमेंटम की टर्म्स में रखना चाहूँ तो 4 का अंडर रूट हो गया 2 अंडर रूट ऑफ 2me, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, इनिशियल मोमेंटम के। दोबारा देखिए, हमारी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी राइज करी है 300%, यानी ये टोटल एनर्जी जो इंक्रीज होने के बाद हो गई 4e। इसी के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम कितना हो गया, 2p। हमने इसमें वैल्यू पुट की E डैश की और उसको हमने फाइनल सॉल्व ना करके बेसिक इनिशियल मोमेंटम की टर्म्स में रख दिया। अब क्या बताना है, फाइंड इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। सो परसेंटेज इंक्रीज इन लीनियर
मोमेंटम। अब वो परसेंटेज इंक्रीज जब हम बताएंगे तो वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय इनिशियल मोमेंटम। यही फॉर्मूला होता है ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ओरिजिनल मोमेंटम। चेंज में फाइनल हो गया यहाँ पर 2p माइनस p अपॉन p इंटू 100, दैट मीन्स p अपॉन p इंटू 100, जिसको हम कह सकते हैं 100%। This kind of numericals are asked in competition exams also, so it's very important kind. इसको समझने के लिए हम एक तो न्यूमेरिकल्स और डिस्कस करेंगे। Let me take another numerical. If kinetic energy is decreased by 19%, then what is the percentage decrease in linear momentum? बस यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज है, स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे। तो अगर स्टेप क्लियर होता है तो एक बार आप वीडियो पॉज करके आप पहले इसको करके देखिए, नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन देखिए, एंड फाइनली यू विल टेली योर आंसर्स। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे, E। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, क्योंकि E से 19% डिक्रीज है, यानी 19% ऑफ E। दैट मीन्स इट विल बी E माइनस 19/100 इंटू E, और एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 100 माइनस 19/100 इंटू E, तो ये हो गया 81/100 E। अब इंक्रीज ऑफ एनर्जी हमने या डिक्रीज ऑफ एनर्जी तो हमने देख लिया। अब आते हैं, क्योंकि हमें चेंज ऑफ मोमेंटम भी पता होना चाहिए, तो इनिशियल मोमेंटम है √2m, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा √2m(E'). अब E' को पुट कीजिए, 2m 81/100 E। अब 81 का अंडर रूट लीजिए, 100 का अंडर रूट लीजिए, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ 9/10 √2m(E), जिसको 9/10p लिख सकते हैं। अब p' की वैल्यू 9/10p हो गया। क्या मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको p'/p लिख सकती हूँ, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। अब हम निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम। अब परसेंटेज डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखिए, डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर p' माइनस p नहीं होगा, डिक्रीज माने इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है। और अगर मान लो आपको कंफ्यूजन रहती है और आप p' माइनस p लगाते हैं तो होगा क्या, सिर्फ वो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा, वो भी गलत नहीं होगा। नेगेटिव आने का मतलब ही डिक्रीज के बारे में बात होगी। तो p माइनस p' क्यों लिया, क्योंकि यहाँ हमें पहले ही गिवन है कि डिक्रीज हो, डिक्रीज इन मोमेंटम है। मान लो आपको बोला जाता है फाइंड परसेंटेज चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब यू नो द बेसिक फॉर्मूला कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन बेसिक मोमेंटम ओरिजिनल मोमेंटम। तो उस केस में आपका मोमेंटम का चेंज नेगेटिव आ जाता, वो भी करेक्ट रहता। तो अब यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, p/p1 माइनस p'/p इंटू 100, तो ये हो जाता 1 माइनस p'/p मैंने निकाला था वो इसी पर्पस के लिए, चाहे तो हम इस फॉर्म में पुट कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 10 माइनस 9 1/10 इंटू 100, तो ये हो गया 10%। तो इट इज परसेंटेज डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, 10%। सो ऑन द सेम बेसिस नाउ this will be homework for you. Here if momentum of a body is increased by 100%, momentum के increase दिया हुआ है 100%, what will be the percentage increase in kinetic energy? और आपको निकालना क्या है, percentage increase in kinetic energy। तो यहाँ जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उसमें से क्या चेंज है कि यहाँ पर गिवन फैक्टर मोमेंटम की टर्म्स में है और चेंज निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। तो दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ। स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर रहेंगे। यहाँ आप स्टार्टिंग करेंगे मोमेंटम से, यानी इनिशियल मोमेंटम p लेके, और चेंज मोमेंटम यहाँ पर क्या हो जाएगा p', दैट मीन्स p + p 2p, क्योंकि 100% ऑफ p आ जाएगा।
अब आप काइनेटिक एनर्जी को यूज करेंगे, मैं हिंट लिख रही हूँ सिर्फ, इट विल बी p²/2m। तो अब p²/2m के टर्म्स में E डैश निकालेंगे और फिर वहां से E डैश माइनस E/E into 100 करके फाइनल आंसर। तो नाउ यू विल सॉल्व इट। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। न्यूमेरिकल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट का है, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। So this is related with the basic concept of kinetic energy. First of all, what is the statement of this work energy theory? According to it, work done by, किसके अंडर होता है वर्क? फोर्स के अंडर। So work done by net force. फोर्स का काम क्या है? डिस्प्लेसमेंट, मोशन कराना, in displacing a body. अब वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, यानी जब हम लैंग्वेज लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए वर्क डन किसके बिना नहीं हो सकता, जब तक फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स का काम क्या है? बॉडी की पोजीशन चेंज करना। सो वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। पहले समझिए इसको। जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, अगर वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ गई, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अगर बॉडी की कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है, बॉडी अगर मोशन में है और फोर्स लगाने से बॉडी एक्सेलरेट कर गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई। तो क्या कहेंगे? वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। है कॉन्सेप्ट वही जो हमने अभी काइनेटिक एनर्जी में किया था, लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें स्टेटमेंट पार्ट में ध्यान देना है। सबसे पहले हम सपोजिशन करते हैं, मान लो m इज ए मास ऑफ अ बॉडी। कोई बॉडी ले रहे हैं, उसका मास m है। u क्या हो गया? दिस इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। f क्या हो गया? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अब फोर्स अप्लाइड से क्या होगा? ऑब्वियसली बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, तो उसमें क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। और v हमने ले ली फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब क्या कह रहे हैं? जब फोर्स लग रहा है, लेट वी टेक दैट देयर इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। कुछ टाइम के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब अगर हम बहुत ही कम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो स्मॉल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, यानी जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होगा? FdS। वी आर नॉट मेंशनिंग F.ds क्योंकि फोर्स डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही वर्क करेगा। नाउ हियर वी कैन स्पेसिफाई दैट दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इसको क्या हम लिख सकते हैं? फोर्स को m into a into ds। अब a को मैं लिख सकती हूँ dv/dt, वही फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, राइट, एज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए अब ये स्टेप्स आपको सिमिलर लग रहे हैं जैसे मैंने ऑल्टरनेट मेथड ऑफ काइनेटिक एनर्जी में कराया था। तो क्या मैं ds/dt को कंबाइन कर सकती हूँ? क्या बन गया ये? mv/dv। ds/dt इज v, mv/dv। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना होगा कि हम स्मॉल वर्क डन जो कि ये आया है इसे इंटीग्रेट करें। अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम ये नहीं कह रहे कि बॉडी रेस्ट पर है, हम जनरल केस लेते हैं कि मान लो इनिशियली बॉडी की कुछ स्पीड है u और फाइनल स्पीड है v। सो तभी हम चेंज इन एनर्जी की बात कर सकते हैं। अब मास हो गया कांस्टेंट uv, सो इट इज दिस इज v/dv। अब बताइए v का इंटीग्रेशन क्या होगा? v²/2। आई होप यू हैव प्रैक्टिस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन टिल नाउ। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन को मैं क्या लिख रही हूँ? mv²/2 माइनस mu²/2। तो ये क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या हो गया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
So now, as per the statement, work done by net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body. Now, let me do numericals on these concepts. A body of mass 2 kg is acted upon by force such that its velocity time graph is shown here. Find the work done by the force. See here, as work done is basically force into displacement, this is equal to change in kinetic energy. अब change in kinetic energy means E2 minus E1 I can write, final energy minus final kinetic energy minus initial kinetic energy. तो initial energy कितनी हो गई? क्योंकि बॉडी की देखिए, जब t इक्वल टू 0 है तो बॉडी की कुछ स्पीड है, तो ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो हाफ mv², यानी मास तो बॉडी का सेम है और इनिशियल स्पीड है 10, तो इनिशियल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी 100 अब 2 सेकेंड्स के बाद बॉडी कहाँ आ गया? बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, यानी वेलोसिटी 0 होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई। तो अब वर्क डन क्या होगा? E2 माइनस E1 दैट इज 0 माइनस 100, दिस इज माइनस 100 जूल। सो वर्क डन by the force with the help of graph we have obtained comes out to be negative, that is minus 100 joule. Negative sign, but we can conclude as with the passage of time velocity is going on decreasing. So velocity is decreasing means retardation will be there. So that's why this work done comes out to be negative. Now coming to second question. Coming to next numerical. A body of mass 2 kg is acted by some forces such that its displacement is given by s equal to 2t square minus 2t plus 10. Find the work done by all the forces in 0 to 2 seconds. See, एक बॉडी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और उस पर कुछ फोर्स लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये इस वेरिएबल इक्वेशन से गिवन है। तो अब आपको क्या करना है? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस इन टाइम लिमिट 0 to 2 seconds. So see here, mass of the body is given to be 2 kilogram. अब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10। अब यहाँ पर क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बेसिकली हम कैसे निकलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, और फोर्स को हम एक्सेलरेशन की फॉर्म में निकालते हैं। या फिर हमारा दूसरा वे क्या हो सकता है कि वर्क डन, क्योंकि हमारी इनिशियल टाइम की लिमिट है 0, यानी 0 से लेके 2 सेकेंड्स में कितना चेंज हो रहा है, यानी अगर बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो क्या हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकाल सकते हैं? अब अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में निकालेंगे मीन्स फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब हमें वेलोसिटी चाहिए। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं इट इज ds/dt। तो s कितना है? 2t square minus 2t plus 10. See, I am taking different types of numericals so that you can get familiar with all different kind of statements. अब वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। 2 तो कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 मल्टीप्लाई t रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट t की पावर 1 तो यहाँ मल्टीप्लायर में हो गई और t की पावर 1 माइनस 1 0, और 10 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या आ गया 40 माइनस 2, तो वेलोसिटी हो गई है। अब यूज कीजिए कि टाइम की इनिशियल लिमिट t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी हुई? -2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरी लिमिट क्या है? 2 सेकेंड, तो उस पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 × 2 - 8, यानी कि सॉरी दिस इज 2, 4 × 2 - 2, दिस इज 8 - 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए, अब देखने से ही पता चल रहा है कि आपको इनिशियल स्पीड, इसको मैं यू ले सकती हूँ, इसको भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड ऑब्टेन हो गई। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mu², यानी ½ × 2 × -2 स्क्वायर, दिस विल बी 4 जूल
और फाइनल एनर्जी इट विल बी हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर 36 जूल। तो वर्क डन क्या होगा, E2 माइनस E1 दैट इज 36 माइनस 4 32 जूल। So now you can see in this statement basically basic point is their variable displacement equation has been given। तो इस equation से सबसे पहले आपने velocity की वैल्यू निकाली और इस velocity के corresponding अलग अलग टाइम पर हमने टाइम की corresponding velocity की फिक्स वैल्यू ऑब्टेन की। तो अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अलग अलग इंस्टेंट पे, और वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू 32 जूल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम एज t इक्वल टू √(x+3)। अब इस डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या करना है, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 0 to 6 सेकेंड। सो इस न्यूमेरिकल में भी वही कॉन्सेप्ट है जैसा हमारे पिछले न्यूमेरिकल में यूज किया था। हमें अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। लेट्स सी हाउ। नाउ t इज इक्वल टू √(x+3)। तो सबसे पहले क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम √(x) निकालें t माइनस 3, देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू t माइनस 3 स्क्वेयर। अब x की वैल्यू क्या हो गई, a माइनस बी स्क्वेयर से एक्सपैंड कीजिए, t स्क्वेयर माइनस 60 प्लस 9। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जैसे हमने पिछले केस में किया था, dx/dt। Now solve it by yourself also. This will be 2t minus 6, right? तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट था, हमने इस इक्वेशन को बेसिक इक्वेशन यानी x की फॉर्म में ले आए जिससे हम इजीली वेलोसिटी निकाल पाए। अब टाइम लिमिट है 0 to 6 सेकेंड, तो इनिशियल टाइम पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी, 2 इंटू 0 माइनस 6 दैट इज माइनस 6 मीटर पर सेकेंड, और t2 टाइम दैट इज 6 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी हो गई 2 इंटू 6 माइनस 6 दैट इज 12, दिस इज 12 माइनस 6, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो दोनों ही इंटरवल पे मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वन दैट इज हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो लगा दीजिए बॉडी का मास कितना है, मास आपको गिवन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही रखते हैं। v2 को हमने 6 रखा और फर्स्ट केस में भी आपके पास स्पीड कितनी है, -6। अब स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये तो आ गया वर्क डन 0। तो एक हम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी देख रहे हैं कि देखते हैं यहाँ पर बेशक डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन अगर स्पीड सेम हो गई, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज 0। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज देन वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0। कॉन्सेप्चुअल्स में यूज हो जाता है। सो हियर वी हैव obtained it, just found it also. So now I hope this numerical is clear. Now next numerical, if a force 2i plus 3j acts on a body to displace it from point, coordinates के terms में है xy plane में 1 2 to 4 1. If initial velocity of the body is 2 meter per second and the mass of a body is given to be 10 kilogram, find final velocity of the body. So when the force is acting. So इस केस में देखिए now how to solve it. देखिए सबसे पहले फोर्स हमें गिवन है 2i plus 3j. This force is acting. It is displacing a body from 1 2 to 4 1. यानी यहाँ पर किसी एक एक्सिस स्केल ऑफ मोशन नहीं है, किसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो सबसे पहले अगर हम ये लें कि इनिशियल r1 पोजीशन वेक्टर अगर हम बनाएं तो क्या होगा, x प्लस
वाई एक्स आई प्लस वाई जे होता, तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो क्या मैं R1 को डायरेक्टली लिख सकती हूँ I प्लस 2j, एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट 2। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट के लिए भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4 1, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन वेक्टर 4i प्लस जे। अब बॉडी को हम इससे इस पॉइंट पर लेके गए तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन चेंज हुई और वो चेंज ऑफ पोजीशन क्या होगी, R2 माइनस R1, तो 4i प्लस जे माइनस I प्लस 2j, तो ये हो गया 3i माइनस जे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा हम यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, जो फोर्स जो वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए वर्क डन क्या होता है, F डॉट R। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, अदरवाइज हमें एंगल गिवन होता है। फोर्स गिवन है 2i प्लस 3j और R अब हमने निकाल लिया 3i माइनस j, तो लगाइए डॉट प्रोडक्ट I डॉट I1 J डॉट J1 और I डॉट J और J डॉट I सारा 0 होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 3, राइट। अब लगाइए बाय वर्क एनर्जी थियरम, सो नेट वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन तो हमने निकाल लिया 3, बॉडी का मास गिवन है तो मास में कॉमन ले लेती हूँ पहले स्टेप में, Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। हमें निकालना क्या है इस केस में, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल गिवन है, तो पहले देखिए मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी Vi कह लो या U कह लो, ये आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है, Vf निकालनी है। तो बस अब हमें सिंपली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 3 इक्वल टू 10/2, Vf अननोन, Vi2 2 स्क्वायर 4, सॉल्व कीजिए, दिस इज 3/5 इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस 4, सो Vf स्क्वायर कितना हो गया 3/5 प्लस 4, तो ये 0.6 प्लस 4 दिस इज 4.6। अब वेलोसिटी स्क्वायर है तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। So that's all for today. We have done different numericals. One numerical I am giving you in the notes as a practice. So revise all these concepts, especially the numerical section. Give it a practice and you can do more numericals on its basis. Thank you. Have a nice day.